My dear students, all of you are welcome in this morning session of English Literature. I am Dr. Naresh Agarwal going to explain a very good scholarly essays of studies composed by Francis Bacon. Actually, let me discuss in detail. Francis Bacon is regarded as the father of English essays. He was born in London on 22nd January 1561. He was the contemporary of William Shakespeare. The present essay of studies is one of the famous essay written by Francis Bacon. It is said that Bacon is a man of head, not of heart, simply because his essays are regarded as capsules of worldly wisdom. His essays are considered counsel, civil, and moral. Vast immensities are within little space in his precise sentences. In his essays, he reveals only worldly wisdom. For this purpose, he always forgets and ignores emotional aspects. So it is said that emotional aspects are forgotten by this scholastic giant. Really, Lord Bacon was a great scholar, a great cerebral, who is regarded even today as a scholastic giant, a great devil of worldly knowledge. He ranged every type of worldly knowledge in the spectrum of his essays. So here the present essay is of studies. In the present essay, he represents all the aspects of studies from all angles. So let us start. क्लासरूम में थोड़ा गर्मी है पर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनते रहना. स्टडीज सर्व फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ. They serve in retirement and loneliness. They serve in business. They give us a wider outlook, and a wider outlook may be helpful to us in every walk of life. The study of books affords to the mind a pure intellectual joy and delight. One who is read in books can talk well. He can introduce quotations and illustrations in his discourse. Thus, studies develop our natural gift, but knowledge derived from books ought to be supplemented by one's experience. प्रिय विद्यार्थियों, क्लासरूम से ही अपने लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं. आप सब अपने अपने घरों पर हो. ऑनलाइन क्लास है, लेकिन बीच में कोई आता तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है. थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो, पर मैं एक्सप्लेन वापस हिंदी में थोड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के बच्चे पढ़ने आते हैं और वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं. तो उन्हीं की लिहाज से कि स्टडीज़ है वो जीवन के हर साइड को, हर शर्त को, हर पहलू को वो प्रस्तुत कर देती है. वो इन्जॉय के लिए, मनोरंजन के लिए, अकेले वक्त को गुजारने के लिए भी की जाती है. बिजनेस पर्पज़ के लिए भी स्टडी की जाती है. आनंद उठाने के लिए भी की जाती है. कुछ लोग केवल इन्जॉय के लिए पढ़ते हैं, कुछ आनंदित होने के लिए, कुछ बहुत ही अपने आप को वेल वर्स करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ अपनी नेचुरल गिफ्ट को, माइंड को डिवेल्प करना चाहते हैं. इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्य हैं. ओके, एवरीथिंग दैट इज़ रेड should be examined carefully. Different books are to be read and studied in different ways. In the same way, there are different uses of reading, writing, and speaking.
Different subjects of study confer different benefits. History makes a man wise. Really, it looks that like a great scholastic philosopher, he is going to make a shower of wisdomful tonic. He says that history makes a man wise, poets, engineers, mathematics makes keen and penetrating, science makes us subtle, 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 चतुर चालाक, and deep. Moral philosophy makes grave and serious, गंभीर बनाती है, and rhetoric argumentative, और जो अलंकृत भाषा है उनसे आर्गूमेंट्स आते हैं. एवरी काइंड ऑफ मेंटल डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कोर्स ऑफ स्पेशल स्टडी. यदि किसी के दिमाग में थोड़ा कोई डिफेक्ट हो या उसको बिल्कुल ऑर्डर में सही ना काम कर रहा हो, तो विद द हेल्प ऑफ स्टडीज़ वी कैन अमेंड इट. एब्सेंट माइंडेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय मैथमेटिक्स. जो लोग एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, है ना, शरीर कहीं, मन कहीं, आत्मा कहीं भटकती रहती है, कुछ याद नहीं रहता, थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं होते, तो उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए तो वो अलर्ट और एकदम से सचेत रहना शुरू कर देंगे. ऑब्ट्यूजनेस ऑफ द इंटेलेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ फिलोसफर्स of the Middle Ages. Thus, studies are very important and useful for our life. Okay, dear students, some memorable quotations, evergreen quotations from this essay like this. First, studies serve for delight, for ornament and for ability. ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर. कितना छोटा वाक्य है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, और हमने एक एक घंटे एक्सप्लेन किया एक एक सेंटेंस को. पर यहाँ एक बार क्लासरूम में कम समय में हम हिंदी के स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें, नॉर्थ इंडिया के बच्चों को स्पेशली. स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. नेक्स्ट कोटेशन, स्टडीज़ परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़. बहुत ही धूर्त लोग कंडेम स्टडीज़, वो स्टडीज़ को पसंद नहीं करते, उसकी भर्त्सना आलोचना करते हैं. सिंपल मैन एडमायर देम. सामान्य लोग जो होते हैं, सिंपल भोले वाले, वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं. एंड वाइज मैन यूज़ देम. और बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं, पढ़ाई का अपने लाइफ में सदुपयोग कर लेते हैं. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. Some books are to be tasted. कुछ किताबें ऐसे हैं जिनको टेस्ट किया जाए, इतनी अच्छी हैं. others to be swallowed, कुछ इतनी हैं कि उनको पचा जाए, निगल जाए, इसका मतलब उसका ज्ञान को अंदर निगल जाए. and some few to be chewed, और कुछ इतनी अच्छी है कि उनको चबा जाए, and digested, और उनके ज्ञान को पचा लिया जाए. नेक्स्ट, रीडिंग मेकथ ए फुल मैन. कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. रीडिंग मेकथ ए फुल मैन का मतलब पढ़ने से आदमी पूर्ण आदमी बनता है. कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, जब वो कॉन्फ्रेंस करने लगता है उन्हीं टॉपिक विषयों पे वो तैयार हो जाता है, रेडी मैन हो जाता है. एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जब लिखना शुरू कर देता है उस समय वो पूर्ण अपनी परफेक्शन की तरफ होता है. नेक्स्ट कोटेशन, देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज. देयर इज़ नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट, कोई प्रकार की ऐसी बाधा या कुछ नहीं होती इन द विट, उसके मार्ग में, बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज़. हाँ, जो स्टडीज़ को फिट एकदम से ऐसा जो कर दे और उसमें किसी भी व्यक्ति का यदि कोई व्यक्ति को सब्जेक्ट को अनर्गल ले जाता है, तो हमें हमारे माइंड को सही मार्ग से उसको एक सही ट्रैक पे लेना चाहिए, उसको डेविएट नहीं करना चाहिए, इधर उधर बातों को घसीटना नहीं चाहिए. राइट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस में उसी लेवल से पढ़े जिस लेवल से लेखक ने लिखा है, कोशिश करें उसी थॉट से पढ़ा जाए. Abunt studia in Morse, studies pass into habits and become a part and parcel of one's nature. हमारे ये पार्ट एंड पार्सल लाइफ का हो जाती है स्टडी, और फिर उसी से हम जीवन में बेनिफिट ले सकते हैं. तो इस प्रकार से ये हमारे सामने बहुत ही सिंपल, सोबर, सारगर्भित एक ऐसे प्रस्तुत किया गया है. प्रिय बच्चों, थोड़ा थोड़ा मैं उसको और इलाबोरेट कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स बना करके,
और इस प्रकार से इलाबोरेट कर देता हूँ कि जैसे ये कह रहा है कि स्टडी कन्फर थ्री फोल्ड ब्लेसिंग्स ऑन अस, 3 प्रकार से किस प्रकार से हमारे अनुदान वरदान के रूप में साबित हो सकती है। इन द फर्स्ट प्लेस दे गिव अस डिलाइट, पहले आनंद देती है। मोस्ट रीडर्स रीड्स बुक्स सिंपली फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। नॉवेल्स एंड स्टोरीज आर रेड फॉर शेयर अम्यूजमेंट बाई मोस्ट रीडर्स। लाइट लिटरेचर इज सो पॉपुलर बिकॉज कॉमन रीडर्स only want enjoyment from books. Books are like friends, they give us a lot of recreation, मनोरंजन when we are in their company. Secondly, studies are the best ornaments. स्टडी अध्ययन करना एक बहुत अच्छा अलंकरण है। ए वेल रेड मैन कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मैनर एंड मैटर ऑफ हिज स्पीच। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी जो भाषा की तौर तरीके और है, उसकी जीवन शैली है, उससे अलग से पहचाना जाता है। वाइड नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ बुक्स। वाइड नॉलेज, बहुत दूर दूर तक का एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव नॉलेज प्राप्त की जा सकती है स्टडी के द्वारा से। ठीक है। इट रेजेज अस इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स एज ऑर्नामेंट्स डू, और हम दूसरों का मूल्यांकन भी उस तरीके से कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल स्टेज पर अपने आप को भी ला सकते हैं। थर्डली, तीसरी स्टेज में थर्डली स्टडीज डिवेल्प आवर मेंटल कैपेसिटीज एंड इनहेरेंट फैकल्टीज। इट इज़ बाय स्टडीज दैट वी लर्न अबाउट आवर टैलेंट्स। अपने टैलेंट्स को, इनहेरेंट कैपेसिटीज़ को, फैकल्टीज़ को हम बढ़ा सकते हैं बुक्स पढ़ करके। आवर नेचुरल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आर डिवेल्प्ड बाय स्टडीज़। गुड बुक्स ऑलवेज गिव अस गुड नॉलेज, है ना। So here it is said these natural gifts and abilities are sharpened and fully developed by studies, but theoretical knowledge gained from the books ought to be supplemented by practice and by practical experience. The study of books helps us in the able management of our business. We can judge well how business can be rightly conducted. व्यापार को हम कैसे चलाएं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करें, सुचारू रूप से चलाएं, तो हम ये उस विषय का अध्ययन करके सीख सकते हैं। ए वेल रेड मैन हैज़ आइडियाज़ एंड देयरफॉर पुट्स हिज बिजनेस इन द राइट ऑर्डर, और अपने बिजनेस को बिल्कुल सही क्रम में, सही दिशा निर्देश में ले जा करके बहुत फ्लरिश कर सकता है। A well-read and well-informed man enjoys distinct advantage over a practical man, और practical man से भी ज़्यादा वो बहुत कुछ हम उसका benefit ले सकते हैं। Thus studies are great use to us in our life. We should study books for proper guidance and instructions. Books are our best companions. Next is this. Books are to be tested. So different type of books are categorized, and we can discuss in detail. There are some books which are not very important. We read such books out of curiosity and not so much for utility. We give only a cursory reading to these types of books. We read them here and there to find out what they contain. On the other hand, some books are very important, they to be read in fully, though not critically. Such books are not meant for deep and critical study. Moreover, there are some books which should be very thoroughly studied with attention and minuteness. We should study in detail every word, reference and allusion in these books. These should be studied diligently and most attentively. There are some unimportant, meaner sort of books. These may be read by assistants. They may note down important arguments and passages for us, and we may read these arguments and passages only. There are certain books which may be read in summarized or averaged forms. These are distilled books, but such reading is always dull. Important books should be read in the original. Thus Bacon says that different books may be read in different aspects, that leads to different ways according to their importance in our life. Next, the essayist prolongs his own philosophy and scholastic theme regarding books and their studies. He says that the greatest advantage of reading books is that a man becomes full of information. He acquires knowledge and understanding of various things.
By reading books, he obtains knowledge, and knowledge is power of the best type. भिन्न भिन्न प्रकार की किताब पढ़ के भिन्न भिन्न प्रकार की नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, और जब नॉलेज आ जाती है तो वो नॉलेज ही हमारी पावर बन जाती है. ए वेल इन्फॉर्म्ड मैन हैज़ ए डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर ए मैन ऑफ मियर एक्सपीरियंस. जिसके पास मात्र अनुभव है लेकिन अन्य किताबी ज्ञान नहीं है, और जिसके पास किताबी ज्ञान और अनुभव दोनों है, तो जिसके पास दोनों प्रकार का अनुभव है वो श्रेष्ठ हो जाता है और आगे निकल जाता है. द प्रॉपर कल्टिवेशन और डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन वंस नॉलेज ऑफ वेरियस थिंग्स. हमें प्रॉपर कल्टिवेशन हमारे अंदर क्या है, एक जुताई कर देता है, विकास का नया अनुभव कर देता है, पर्सनैलिटी में नया निखार ला देता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की नॉलेज. जबकि राइटिंग मेक्स अस प्रिसाइज. राइटिंग से जब राइटिंग स्किल आ जाती है तो हम अपनी बात को, बहुत बड़ी बात को छोटे में कह सकते हैं. वास्ट इमेंसिटीज विद इन लिटिल स्पेस. का अगर में सागर भर सकते हैं. एंड एग्जैक्ट इन आवर थॉट्स and expressions. While writing, we have to look for a clear and precise expressions of our feelings. Years of toil and failures go into the making of great writer. Writing is an art to be learned by a slow and arduous process. If one sets about it earnestly, one will acquire exactness and precision. Further, the essayist says conference, discussion and speaking make a man capable of giving prompt reply. Conference makes one a ready man. Talking and speaking develop our wit power. It enables us to give prompt reply. Bacon therefore says, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. However, our natural habits are like natural plants that need pruning by study. Just as plants stand in need of pruning and trimming for proper growth, जैसे जो खरपतवार वाले छोटे मोटे पौधे होते हैं ना, इनको समय समय पर प्रूनिंग, ट्रिमिंग, इनकी कटाई छटाई चाहिए. तो इसी प्रकार से हमारे थॉट्स भी हैं, हमारी स्टडीज़ का सेगमेंट भी वैसा ही होता है. सिमिलरली नेचुरल टैलेंट ऑफ ए मैन रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली गाइडेड. यदि प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो तो वही व्यक्ति गलत मार्ग पे चला जाएगा. जिस प्रकार से अपने क्या कहेंगे कि एक चाकू है, उसी से हम एप्पल काट सकते हैं, उसी से अपनी उंगली भी काट सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज. तो वन कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ नॉलेज by studying in books. Just as the taste of ordinary distilled water is insipid, in the same way books which are interesting to read in the original appear to be dull and uninteresting if read in summarize. My next point is this, that actually Lord Bacon is supposed to be a scholastic giant. एक बहुत बड़ा दानव देता है विद्वता का. His essays are supposed to be capsules of worldly wisdom. एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. His essays are supposed to be civil, counsel and moral. Okay, and so it is said that capsules of worldly knowledge are inbuilt in the essays of Lord Bacon. Whenever we read them properly, we can get much knowledge from his essays. So worldly knowledge percolates, छन करके बाहर आती है through his essays, and his essays are, therefore we can say his essays are fit to be the empire of giant, empire of devils or Satan's kingdom. तो यहाँ समझ गए होंगे. क्लासरूम में हमने जाके ये लाइव टेलीकास्ट करके आज बच्चों को समझाने की कोशिश की है ना. चूँकि क्लास ऑनलाइन है लेकिन हम क्लासरूम से ही पढ़ाते हैं. कॉलेज के अंदर भी क्लासरूम में खड़े होके, तो कई बार थोड़ी बहुत कोई नेचुरल वे में कोई आ जाता है मिलने, कोई और आ जाता है, तो कोई थोड़ी बहुत रह जाता है बीच में. तो हम उसके लिए आपको ये कहते हैं कि आप उस पर ध्यान ना दें. और ये इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए कराया जा रहा है, तो उसी लेवल से इसको कराया जा रहा है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.